भारतीय संस्कृति में ये प्रश्न पूछा गया है, किम कला, किम नृत्य, किम संगीत, किम साहित्य, और इसका जवाब दिया गया है कि कम परमात्मानि लाति गिरहनाति इति कला, इति संगीत, इति साहित्य, इति नृत्य. The question, and this comes from Upanishad. The question is, what is fine arts? How do you define literature? How do you define music, dance? And the answer given is what brings us near to the Supreme Spirit, or what makes us realize the Supreme Spirit. I mean, these are the mediums. This is not merely a source of enjoyment for our sense organs, but it should impact us more deeply and realize, and before that, when you pursue excellence, this has been the Indian view, that when you pursue excellence in any art or branch of science or even humanities, in your profession, it can be regarded as an endeavor to seek the divine in you. Because perfection, excellence, is not a human strives to attain that, but that is not a human quality. That is the divine quality. And when we try to attain that excellence, we are trying to march towards that goal. Or because for us Indians, the eternal is not up above there. The eternal is here in temporal in every one of us. Deho devalaya prokto jivo deva sada shiva. Our cultural heritage, our spiritual heritage demands of us that we view everybody as abode, as temple of God. Deho Devalaya. Every human body is Devalaya, because the Paramatma in the form of Atma dwells in each one of us. And this is what art, culture, they basically to refine, this is the source to refine your spirit, to purify your mind. And since Kala brings us to the realization of the Supreme Spirit, then one more realization comes, that there is something higher than the passing panorama, that there is some kind of living spirit which animates, informs, inspires all our activities, to make us realize that this is the true purpose of Kala, Lalit Kala, Sai. And these are all basically, according to our tradition, what is the purpose of education? The purpose of education is to make us realize in fact, even the prayers through which we invoke the deity of knowledge, deity of fine arts, we pray for purity of body, purity of mind,
एंड सैंक्टिटी ऑफ स्पिरिट। शरीर की स्वच्छता, चित्त की शुद्धता और आत्मा की पावनता, और उसके साथ सभी मानसिक रोगों से निशेष जाड्यापहा। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी मानसिक रोगों से मुक्ति पाएं, हमारी सोच विकृत न हो। और सोच विकृत, एक ही हमारे यहाँ कहा गया, एक ही कारण है विकृत सोच का, क्योंकि इस संस्कृति का जो विरासत है वो है ये रियलाइजेशन, ये अपने अंदर एहसास पैदा कर लेना कि जो कुछ भी यहाँ है वो मेरा ही विस्तार है। और अगर if everybody else is by own extension, if I learn this lesson and I internalize this lesson, then it will not remain possible for me to put my foot on the foot of another person. Then everybody becomes, यही बार बार कहा, हर तरह से यही कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा, सारा जोर इसी बात पे है। अब इसको, इस चीज को समझने के लिए और इसको आत्मसात करने के लिए बहुत सारे माध्यम, और जो आपने आज यहाँ आयोजन किया है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर हमारे लेकिन अजीत जी, लेकिन वो कला प्रेमी, डॉक्टरी भी कला है, वो भी कोई शोभा नहीं। सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम, हर एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज मस्ट लीड टू self realization, and the self realization is that everybody, the divinity that dwells in you in the form of the soul, in the form of Atma, dwells in each one of us. Therefore we are all spiritually connected. और ये संगीत, नृत्य, कला, साहित्य, ये उस भावना को और ज्यादा मजबूती के साथ हमें समझाने में कि ये प्रभावी माध्यम। लेकिन हाँ, एक बात और कही गई है जो मुझे कहना चाहिए, कि कहा गया है कि आत्म संस्कृतिर वावा शिल्पानी एतरिये जमाना आत्मानम संस्कृति। जितनी भी कलाएं हैं, जितनी ये ललित कलाएं या साहित्य या जो भी है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो पहले मैंने कहा, कि इसके जहां आप, हम में से हर किसी को ये एहसास हो कि केवल ये भौतिक दुनिया ही सब कुछ नहीं, इसके आगे भी कुछ और है। ये चीज कहाँ से आती है, ये कला की निपुणता कहाँ से आती है, हम उसके बारे में भी गौर कर सकें। और तो ललित कलाओं का उद्देश्य उस चेतना को जागृत करना है जिससे हमारे अंदर ये भाव पैदा हो सके, और जहां हम अपने आप को दूसरों के साथ दूसरा समझ के नहीं, बल्कि खुद अपना विस्तार मानकर हम दूसरों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये साहित्य की, कला की, ललित कलाओं की ताकत है कि आप योग के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मानस को प्रशिक्षण देते हैं एकाग्रता के लिए। हमारे विद्यार्थी होते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उनको बार बार कहा जाता है कि अगर एकाग्र मन करके नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अब वो एकाग्रता, मन तो चंचल है, मानस चंचल है, तो एकाग्रता कैसे आए? उस एकाग्रता के लिए प्रशिक्षण खुद अपने आप को,
इंसान को करना पड़ता है। पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी संस्कृति में नृत्यांगना को जब वो सर पे घड़ा लेके तार पे चलती है तो उसको प्रतीक माना गया है उस एक निष्ठा का। उसका कोई ध्यान नहीं होता, कहीं किसी तरफ ध्यान नहीं होता, इसी के उसके सर पे तो घड़ा रखा हुआ है। तो वो ऐसा खूबसूरत लाइनें हैं, पुंखानुपुंख विषयान उपसेवमान धीरो न मुंचती मुकुंदा पदार विंदम संगीत वाद्य लय ताल वशम गतापि मौलिस्था कुंभा परिरक्षणा धीर नटीव। जिस तरह एक नृत्यांगना सर पे एक पानी का मिट्टी का बर्तन लेके उसमें पानी भरा हुआ होता है, वो उस डोरी पे चलती है, तो उसको माना गया है कि ये उस एकाग्रता की एक तरह से पराकाष्ठा है। और ये प्रार्थना की गई है इसमें कि जिस तरह ये नृत्यांगना एकाग्रता के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करती है, तो ये प्रार्थना की गई है कि इसी तरह जो पवित्र आत्माएं हैं वो अपने सारे कामों में, दुनिया के कामों में लगे होने के बावजूद उनका ध्यान उस परम सत्य से कभी हटता नहीं है। तो ये हमारे यहाँ ये इसकी इम्पोर्टेंस है। मैं पढ़ा था कि एक जगह कि मतलब ये इसकी क्या प्रभाव पड़ता है और क्या शक्ति है कि कालिदास एक जगह यक्ष कहलवाते हैं। यक्ष कहता है बादलों से कि तुम घूमते रहते हो, जब तुम अपनी यात्रा में हो तो देखना कि एक सुंदरी बहुत मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, मैले मलिन वासनी मैले कपड़े पहने हुए वीणा बजा रही होगी, तो तुम उसको रुककर जरा उसकी वीणा को सुनना। जब उसकी वीणा में बहुत ज्यादा मधुरता आए तो जान लेना कि उस वक्त वो मेरे बारे में सोच रही। और जब उसमें बहुत रस नजर ना आए तो सोचना कि अब उसने मेरे बारे में सोचना बंद कर दिया। और ये चीज, ये ऐसे वाक्य ये किस चीज को टच करते हैं? आप ये मानस को टच करते हैं, ये आत्मा को टच करते हैं। एंड द पर्पस ऑफ ऑल म्यूजिक एंड ऑल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, एवरीथिंग इज रिफाइनमेंट ऑफ स्पिरिट। हमारी आत्मा का विकास। मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। मैंने डॉक्टर प्रधान से कहा था कि मैं सुनने के लिए आ सकता हूँ, लेकिन ये नहीं माने तो मैं आ गया हूँ। और आपने बावजूद इसके कि मेरा इस क्षेत्र में मेरी जानकारी बहुत कम है, आपने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।